Hello guys, how are you all? So this live is specifically for communication skills and we are going to discuss communication skills with Dr. Satish. He'll be here soon. So what we are going to discuss, we're going to discuss everything that we feel should be included in the communication skill part in dentistry and what are the things that help you to enhance your practice because of this communication skill point. What are the points which help to convince the patient, which helps to avoid any rifts and so on. So firstly, welcome you all. I welcome you all on my behalf, and Dr. Satish will be here soon. I believe he is here. So let's, yes, he is here. I accepted the request. I believe he'll be here soon. So a lot of people are joining in. Yes, he's Hi, here. Dr. Pankaj. Hello, sir. How are you? I'm fine. It's a So good to see you nice here. initiative you started of getting communication skills for the dentist. Congrats on that. Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. So, sir, a lot of people are joining in. All of them are mostly young dentists who are planning to start their practices or they have already started their practices. But sometimes we have that confusion that what are all the things which should be included in communication skills and how does it help in clinical practice? So, starting with you, I want to just ask a simple thing that what all should be included in communication skill, not just in the dentistry, but in generalized part, which should be included in communication skills. Communication skills is something which you're not taught, sadly. Okay, and Right. it is in every aspect of your life. Now, for example, I and you are talking out here. Okay, because of which we are able to get an audience. People are ready to listen to us. This is a part of communication itself. Okay, there is a saying that the people are willing to die but are not willing to go on stage and speak. Okay, Mm, that giving a speak or a speech or a talk is something which everyone absolutely fears. Okay, so right. that is how scared people are of communicating with others. But Yes. Yes. this not only is about talking to a grand audience, it is about even one-on-one personal interactions, because Mm, nowadays we are all at our phones. Okay, so you see a lot of people, if they are scared, if there is something they want to tell a person, they just ghost the person, they just avoid the person. So from yes. just not talking to a lot of people, people even avoid speaking to one-on-one and avoid stressful situations. Okay, so this is Mm, the yes. general part of life. If you see in clinical part of life, if you want to be a successful dentist, okay, everywhere from starting your practice, how do you start your practice? You either buy a property or you rent it. Okay, so to get the best deal, you have to communicate. In India, luckily, our parents and our relatives take that call for us. Okay, so whenever you see a young dentist going for his first negotiation, he has his entire family willing to support him to get him the Yes. best deal. Okay, so they can help you with setting up your practice. But once you set up your practice, you are the one who has to communicate with your patient that मैं treatment कर सकता हूँ. Okay, Right. and majority of us, when we put our practice, we are at the age of 25, 26, 27. Okay, पेशेंट अंदर आते ही उसको लगता है कि इतना छोटा सा लड़का या लड़की मेरा ट्रीटमेंट करेगा. Okay, Right. a lot of female dentists tell me the problem they face is a lot of patients call them sister. आप ट्रीटमेंट कर Mm, पाओगे क्या? So they end up feeling that they are being compared to a nurse. Okay, it is not because you're a female. Okay, it is not just that. It is because they look quite young. So to gain confidence of the patient कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, it is not about age, it is about ability that you have to communicate it forward. So that is where mm, the patient part comes. Okay, अगर अभी आपने patient convince किया, you will eventually expand your team. You have to be mm, able to communicate with your staff. You will have to tell the receptionist well कि ये मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए, this is the protocols I want. So mm, communication is from start to the end as a part of running a clinical practice. And as you told, it is just not about clinical practice. It is about even managing your life outside. Okay. yes. So that is Completely. everything which someone needs to learn from.
a clinical practice perspective, a communication skill perspective, basically. राइट सर, राइट सर, कंप्लीटली एग्री सर। मुझे तो सर ये भी लगता है कि फिजिकल लैंग्वेज, फिजिकल बॉडी लैंग्वेज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, दैट हाउ डू यू talk to, not only just talk to the patient, how do you move your hands, how do you sit, how do you know do these how do you walk in your clinic, all of these things matter. मुझे तो लगता है ये भी should be the part of communication, because we are how we are 100%. moving on. Right, right. uh, There is the, one study which has been done, okay, that says hmm, that most of the communication, okay, is non-verbal. So what you're telling about hmm. hand movements, face movements, eye movements, like just a Yes, reaction like this, there are 10 other feelings about what I am feeling about it. Or if someone does like this, there's an emotion which is passed. We humans, right. before language was developed, used to communicate with each other through our emotions and expressions. So Hmm. you're absolutely bang on when you tell that communication is not only about words, it is about how you react, how you speak, how you keep your posture, how you behave. A lot of focus has to be given to that aspect also when it comes to communication skills. Okay. Dr. Right. Sagar, I just want to ask you something that you have been running a practice, you're running two practices now, both are doing successfully well. Right. Is there ever a communication skill technique which has helped you, or a place where you were stuck, but you knew how to speak and you got away with things or got your way? Uh, Sir, to be honest, lot of experiences like this, because where I am practicing, most of people are neighbors to me, and there is another practice which I have started that is in a market. So both practices are different. When people know you from the start, then they trust you a little bit more than in the marketplace area. But एक और इशू ये होता है कि उन्होंने आपको बचपन से बड़े होते हुए देखा है, तो वो आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करते. They feel that we have seen this kid going to the college or to school, so we don't feel that gesture of doctor to him. तो ऐसे लोग, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि अब तो फिर भी कम बोलते हैं, पहले ये बात बहुत सुनने को मिलती थी कि बहुत यंग है, या अभी आपने बीडीएस किया है कि आप एमडीएस हो, कि आपने कहाँ से एक्सपीरियंस किया है, क्या किया है, ऑल ऑफ दैट. ये सब चीजें जितने लोग सुन रहे हैं वो सब एक्सपीरियंस करते होंगे. तो ये स्टार्टिंग में जब होता था तो इसमें बोलना नहीं पड़ा, आपको समझ नहीं आता व्हाट विल यू स्पीक. एंड जो आपका पॉइंट है सर कि कहीं पे स्टक हो जाना, बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू एंड दे से वेरी रूड थिंग्स टू यू. उस टाइम पे आपके लिए अपनी डिसेंसी मेंटेन करना और उस वर्ड्स को चूज करना जिसमें आप स्टर्नली अपनी बात बता भी दें. और फॉर एग्जांपल, वंस आई वाज डूइंग ट्रीटमेंट ऑफ ए लेडी जिनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे. तो वो अंदर आके बैठ गए, एंड आई वाज डूइंग, आई यूज्ड टू बिफोर प्लेसिंग एलए, आई यूज्ड टू डू दैट टेस्ट, पैच टेस्ट, कि एक बार चेक करने के लिए कि एलर्जिक तो नहीं है टू एलए. सो आई डिड दैट, एंड शी वाज ओके विद इट. शी सेड ओके, डू इट, इट्स फॉर माय सेफ्टी ओनली. और बट उन्होंने मुझे वहां पे बोला कि डॉक्टर, डू यू नो, यू आर कंप्लीटली इन्फॉर्म व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंप्लीटली इन नॉलेज ऑफ दैट. तो ये जब बात उन्होंने बोली तो बड़ी रूड लगी उस टाइम पे, द वे ही said that point. और उस पॉइंट पे आई वाज वेरी काम. मैंने बोला डोंट वरी सर, आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड इट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ मैम ओनली, सो डोंट वरी. ये बोल के, और मेरी एक फ्रेंड भी थी उस टाइम पे, वो मुझे कई बार सपोर्ट करने आ जाती थी. नया क्लिनिक था एंड शी यूज्ड टू वर्क इन अ वेरी हाई फाई क्लिनिक. तो शी वाज वेरी एंग्री. शी सेड कि तूने कुछ बोला क्यों नहीं, और ये ना, अब तो बोल देना चाहिए था कि आप बाहर बैठो, ये वो. मैंने कहा कोई बात नहीं. देन वी स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट, एंड इन बिटवीन द ट्रीटमेंट, टू माय सरप्राइज, that lady said कि एक मिनट, and she said to her husband कि आप बाहर बैठिए, आप यहाँ पे मत रहिए, आप बाहर बैठिए. And after that, after the treatment, that guy came to me and in very apologetic manner कि सॉरी डॉक्टर सागर, मैंने ऐसे बोला, बट जो है यहाँ पे कई बार ऐसा हो गया है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो कुछ गड़बड़ इंजेक्शंस लगा दिए गए या जो भी हुआ, तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता. तो आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि कभी कभी आपको पेशेंट के रिएक्शन का रीजन भी समझना है, और उस टाइम पे आपसे डिसेंसी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यू आर द डॉक्टर, यू आर द प्रोफेशनल. वो कितना भी आपसे प्रोफेशन में, कोई और प्रोफेशन में होंगे, वहां भी हो सकता है डिसेंसी एक्सपेक्टेड होती हो, बट वहां वो डिसेंसी नहीं प्रोवाइड करते. आप अपनी क्लिनिक में तो करेंगे, वो शायद अपने शिप पे करें, तो वहां वो कैप्टन होंगे, बट यहाँ आप, यू आर द बॉस. तो वहां आपकी डिसेंसी एक्सपेक्टेड होती है, ना कि बाहर निकलो. वो एक्सपेक्टेंसी नहीं होनी चाहिए. तो दैट इज समथिंग. एंड अनदर ए वेरी छोटा सा एग्जांपल सर, एक लेडी आई, बहुत ओल्ड लेडी,
और आके उन्होंने एकदम स्टर्नली मुझसे बोला कि मैं तो बस यहाँ चेकअप कराने आई हूँ, और मैं तो, मेरे डेंटिस्ट दूसरे दिल्ली में है, और आप बस चेक करके मेडिसिन दे दो, पेन किलर दे दो, ये वो। मैंने कहा ठीक है मैम, आई डू इट, आई डिड दैट, मैंने उनको भेज दिया। नेक्स्ट डे आई कॉल्ड पर्सनली कि मैम एवरीथिंग इज ओके। शी सेड हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। In the evening, she came with all the ladies of the society, and she came to my clinic. She was going for a walk, and she came to my clinic, and she said, देखिए ये डॉक्टर साहब हैं जो पर्सनली पूछते हैं कि दांत ठीक है या नहीं। बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स में मुझे लगता है सर एक पार्ट फीडबैक भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वहां आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, क्या पर्सनल टच जब रखते हैं अबाउट फीडबैक, तो पेशेंट, नाउ दैट लेडी कम टू मी ओनली, पूरे फैमिली के साथ, इन सोसाइटीज को भी रेफर करती हैं। दीज आर टू एग्जांपल्स। इसमें आई बिलीव कि एक में रिफ्ट हो सकती थी, एक में, दोनों में रिफ्ट हो सकती थी, दोनों में आई कुड हैव फेल्ट बैड एंड आई कुड हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट मैनर। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स जो मुझे लगता है फीडबैक में Yeah, इम्पोर्टेंट है। no, what you have said is absolutely right. कैसा है ना, when we are young, okay, not just young, we have this feeling कि हम लोग डॉक्टर हैं. We have this thing कि सब लोग हमें डेंटिस्ट बोलते हैं, but हम डेंटिस्ट नहीं, हम डॉक्टर भी है. So a lot of times we are too full of ourselves. ठीक है, हम लोग ये नहीं सोचते कि पेशेंट का क्या पर्सपेक्टिव है. A lot of times, okay, 90% of the times पेशेंट ट्रीटमेंट करने के लिए ही आता है, पर they have heard a lot कि डेंटिस्ट लूटते हैं, मे बी देयर फ्रेंड्स हैव टोल्ड, रिलेटिव्स हैव टोल्ड कि डॉक्टर श्योर है. तो साइकोलॉजिकली उनका माइंड मोल्डेड है थिंकिंग दैट कि यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन होने ही वाला है. सो दे कम विद एन ऑफेंसिव एटीट्यूड. सो व्हेन दे आर ऑफेंसिव, इट इज आवर जॉब टू डिफ्यूज द सिचुएशन. मतलब हमें शांति बनाए रखनी चाहिए. तो जो आपने दोनों एग्जांपल्स दिए, इट इज वेरी मैच्योर ऑफ यू. इनिशियली मैं वैसे बिहेव नहीं करता था. ओके, आई हैड दिस कि मैं कुछ बोलता नहीं था. सडनली अंदर द एंगर यूज्ड टू बिल्ड अप एंड देन सडनली वो फूटता है. ओके, अ लॉट ऑफ अस डेंटिस्ट आर रनिंग बिटवीन फियर एंड एंगर. मतलब आप डरते हो या गुस्सा होते हो. दैट कंपोजर इज समथिंग विच इज अ लर्न्ड स्किल. तो आप जितना सुनोगे, जितना समझोगे. एंड प्रॉब्लम क्यों ये फियर और एंगर होता है? बिकॉज हमारे पास सही जवाब नहीं होता. जैसे किसी ने अगर पूछ लिया कि you're a very expensive dentist, so why should I get treatment done by you? So it either we feel कि वो offensive है, मतलब हम तो इतना अच्छा से कर रहे हैं. Okay, we take it either offensive or we just take it very defensive. नहीं थोड़ा कम करके देता हूँ. We are not firm to tell कि नहीं ये हमारे charges हैं, ठीक है. But if you cannot afford it, you can go for the other treatment options which are also available, which are slightly cheaper. We, however, charge this much because ये हम लोग हमारे quality और consistency maintain करने के लिए चार्ज करते हैं, ठीक है. But we as dentists are not taught कि कोई पैसे के बारे में पूछो तो how to react. तो I think that fear and anger, जैसे आपने कंपोजर बनाए रखा था दोनों सिचुएशंस में, वो नहीं होता है बिकॉज लैक ऑफ नोइंग द राइट आंसर. तो हम लोग फंस जाते हैं. सो हम लोग अपने जो इंस्टिंक्ट से एंगर और फियर में उसमें घुस जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू मोल्ड बेसिकली. टू बी ऑनेस्ट सर, मुझे लगता है कि आंसर मुझे तब भी नहीं पता थे कि व्हाट टू आंसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तब स्पेशली जब मैम ने बोला कि हाँ, तब भी मुझे नहीं बताते. बट मुझे पता था कि बस अब अभी जितना भी है, जो भी सिचुएशन है, इसको ओवरकम करना है. जैसे फर्स्ट वाले में तो मुझे आंसर पता था कि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट. बट सेकंड सिचुएशन में मुझे नहीं पता था कि जब कोई ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ ये कराने आई हूँ, सिर्फ चेकअप करना है, तो मैं उसको कैसे बात करूँ. मुझे नहीं पता था. फीडबैक मैंने इसलिए की क्योंकि रेगुलरली सबको करते हैं. तो अभी भी शायद आई लर्न फ्रॉम यू, लर्न फ्रॉम थिंग्स. आई वांट टू नो, जैसे सर आपने बताया कि एक्सपीरियंस के साथ वी लर्न थिंग्स. तो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली सिखाएगा ही, बट इफ समबडी वांट्स टू लर्न इट फास्ट, तो जैसे बुक्स हैं कुछ, जैसे मुझे लगता है कुछ बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं और इंस्टाग्राम पे भी डाली हैं, आप भी डालते हैं कई बुक्स. तो आपके हिसाब से, आपने अपनी बुक्स में अगर वो इंक्लूड किया पॉइंट जो आपने लिखी है, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न दिस पार्ट, दिस कम्युनिकेशन स्किल पार्ट, ताकि पहले से ही रेडी हो डेंटिस्ट, वो फियर और वो उसके बीच में स्टक ना रहे, आंसर्स पता हो देने के लिए. और कैसा है ना, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, अगर आज मैंने बोला कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल का मैं मास्टर हूं, दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. ओके, यू टू टॉक टू माय वाइफ और माय रिलेटिव्स, वो लोग बोलेंगे इसको, बेटे को बहुत सीखना बाकी है. ठीक है, बट जोक्स अपार्ट, यू कैन लर्न इट योरसेल्फ गिर के, या यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स व्हाट अदर्स हैव डन. ओके, सो हैविंग अ मेंटरशिप
या किसी ने जो गलती की है उससे आप सीख पाओ, तो यू फास्ट ट्रैक योरसेल्फ। जैसे कल अगर आपको रूट कनाल्स करने या इम्प्लांट्स करने, ठीक है, आप 100% यूट्यूब में सारे वीडियोस दिए, टेक्स्ट बुक सबके बारे में बनाए गए, ठीक है, टीचर्स भी वही टेक्स्ट बुक से सिखाते हैं, टीचर्स भी वही बुक से सिखाते हैं, वही वीडियोस देख के टीचर्स सिखाते हैं, वो लोग खुद का तो कुछ नहीं करते। 90% ऑफ द नॉलेज विच यू आर टॉट आइदर इट इज इन स्कूल और कॉलेज इज समथिंग विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, बट द पॉइंट इज टू गिव यू इन अ कंडेंस्ड फॉर्म कि आप वो इजिली डाइजेस्ट कर सको। And when you're able to easily digest it, it is you're able to apply it faster. So having a mentorship program, okay, I always used to wish कि जब डेंटिस्ट्री स्टार्ट करा था तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, जब मैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में था लोग इतना खुल के अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करते थे कि ये हो गया था वो हो गया था, सब अपने मतलब अपने ही तक रखते थे। यू हैड टू गो टू अ कोर्स, यू हैड टू गो एंड मीट पीपल, मतलब वो ऐसे चुन चुन के इन्फॉर्मेशन आता था। बट इन टूडेज डे एंड एज when there are mentors out there are people out there जो आपको वो knowledge provide कर सके। The easiest way of learning is to learn from others' mistake and second is to keep applying it। जैसे मैं आपके सारे communication videos देखता हूँ, ठीक है, like for example there was one video you had posted about hand gestures, okay, around 2-3 महीने पहले। I have heard about hand gestures बहुत बार उसके पहले, ठीक है, बट वापस आपने दिखाया ना, सो देन व्हाट हैपेंस इज इट्स लाइक अ रिमाइंडर, अच्छा ये मैंने सीखा है पर मैं कर नहीं रहा। सो द मोर यू कीप लिसनिंग, रीडिंग, रीडिंग, तो ही वो जाके आदत बनता है। मतलब ये ओवरनाइट आदत नहीं बनता है, बिकॉज हमें ये बचपन से या पहले से सिखाया नहीं गया है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स एमबीए वगैरह में सिखाया जाता है। और अगर आप कोई भी सक्सेसफुल प्रैक्टिस और एक एवरेज प्रैक्टिस में डिफरेंस देखो ना, इट इज नॉट अबाउट हाउ दे run the practice। रूट कनाल 90% लोग सेम एवरेज अबव एवरेज करता। देयर इज ओनली 5% जिनका काम एक्सेप्शनल है और 5% जिसका काम एकदम बेकार है, ठीक है, बाकी 90% आर इन दैट मिडिल स्वीट स्पॉट। पर वो जो डिफरेंस है ना, वो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो उस पे होता है। सो लर्निंग फ्रॉम मेंटर्स इज माय पर्सनल वे ऑफ हाउ पीपल शुड लर्न। ओके, What do you think? हाँ सर, आपने एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर कर दिया इसमें, जो मैं आपसे पूछने वाला था। बट थिंग इज कि कई लोग ये भी पूछते हैं कि मुझसे ही पूछते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल कैसे करेगा ओपीडी को, या कैसे। अब इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, वेरी बिग आंसर। और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी है कि जैसे आपने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करने से ही क्लिनिक रन करने लग जाते हैं। आप कैसे कन्वे करते हो अपनी बात को, फिर किस तरीके से पेशेंट उस चीज को समझता है, कैसे रिफ्लेक्ट अपॉन करता है, और इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट अपॉन करता है कि दूसरों को भी रेफर करे, वो एक ओरेटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और सर मुझे तो ये भी लगता है कि ये सिर्फ डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपका पूरा स्टाफ किस तरीके से ट्रेन होता है। बल्कि आपने मुझे सिखाया था कि क्लिनिक पे पूरा स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे बात करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट टिल द डॉक्टर। तो कैसे कैसे कुछ पार्ट पे असिस्टेंट कैसे बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है, कैसे हो रहा है, ऑल ऑफ दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो यही पॉइंट मुझे आपके आंसर से मिला, जो एक क्वेश्चन बन गया कि कैसे सक्सेसफुल चीज होती है डेंटिस्ट। बट आपने जो असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट का बोला है ना, आई गिव यू एन एग्जांपल। ओके, आप कभी भी क्लिनिक में जाओगे ना, इफ यू डू अ प्रोसीजर, अगर पेशेंट पहली बार वो प्रोसीजर कर रहे हैं, वो डर रहे हैं, आई एम एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट, आई डू ओनली पेरियो इम्प्लांट्स। सो लॉट ऑफ टाइम पेशेंट के मन में होता है कि ये इम्प्लांट पेनफुल होने वाला है क्या, ठीक है, एंड पेशेंट आपको बहुत सारे सवाल नहीं पूछता है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू शो दे आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट को एंड में नहीं पूछते हो कि आपको कोई डाउट है, तो बहुत बार उनके मन में वो जो डाउट होता है वो पूछते नहीं है। फॉरगेट अबाउट पेशेंट्स, हम लोग जब लेक्चर्स बैठते हैं या क्लासेस बैठते हैं, कितने लोगों के मन में एक सवाल होता है, बट वी डू नॉट रेज आवर हैंड एंड आस्क द पर्सन टीचिंग अस बिकॉज वी आर स्कैर्ड टू कम अक्रॉस एज स्टूपिड। Similarly, the patients have this fear, okay? But a lot of times, these patients, when they are sitting in the reception outside, now, you will ask them talking to your receptionist or assistant, ये डॉक्टर को एक्सपीरियंस है क्या, यहाँ पे इम्प्लांट्स होता है क्या, इम्प्लांट में पेन होता है क्या, ठीक है। नाउ इफ योर असिस्टेंट इज नॉट ट्रेन्ड वेल, ठीक है, उनको पता ही नहीं इम्प्लांट क्या होता है, कि स्टेप्स क्या होता है, क्या बोलना है पेशेंट को, अच्छा इम्प्लांट आई डोंट नो, अब वो सर को ही पूछ लो। अगर पेशेंट
रिसेप्शनिस्ट ने ऐसे जवाब दिया, योर पेशेंट इज गोइंग टू थिंक कि ये यहाँ पे इम्प्लांट होता ही नहीं है, बिकॉज अगर इतना होता तो ये रिसेप्शनिस्ट को तो पता होना चाहिए. सो योर राइट. रिसेप्शनिस्ट एबिलिटी टू से नहीं नहीं बहुत सिंपल सा है सर, 2 स्टेज पे करते हैं, जैसे आप दांत निकालते हो वैसे ही एनेस्थेटाइज करते हैं, द प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली सिमिलर एंड कुछ पेन नहीं होता है. उसके बाद मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फॉलो करते हैं, तो 90% लोगों को पेन नहीं होता है. सो इफ शी इज एबल टू कन्वे दैट, द पेशेंट सिटिंग आउटसाइड को लगता है कि अच्छा यहाँ पे होता है, द रिसेप्शनिस्ट इज ऑल्सो अवेयर. सो द चांसेस ऑफ कन्वर्जन increases by your receptionist being able to give these answers. Your receptionist, how they say good morning, the vibe, because आपका जो रिसेप्शन रहता है वो आपका हॉल जैसा रहता है. कोई आया, ठीक है बैठ जाओ, ऐसा बोला, एंड हाँ आइए कैसे है, बैठिए. द पेशेंट्स फीलिंग कि वो आपके क्लिनिक में आ रहा है, हाउ डज ही फील अबाउट योर क्लिनिक, plays an important role on when he will, whether he will agree to treatment and whether he will have a good feeling even after getting treatment done for you. So training your staff of how to behave to a patient, with a patient is different. आप एक 5 स्टार क्लिनिक में जाओ और एक चाय टपरी में जाओ, you will see the difference. Okay? So why do people like going to a 5 स्टार? चाय तो वही है, दूध पत्ती तो वही है, सब सेम है. It is basically how they behave with you, the environment they create. So that is something which you cannot do as an individual. Training your team is very important to get that across. Sir, adding on to this point कि ट्रेनिंग ऑफ द टीम कि उनको क्या बोलना है, उससे ज्यादा इंडिया में मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है कि उनको क्या नहीं बोलना है ऑन कॉल. क्योंकि क्या होता है कि वहां पे पेशेंट आपका कन्विंस्ड है, क्लिनिक पे आ रखा है, वहां तो दे शुड नो कि भाई जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, तो मैंने भी अभी तक इतना उसको अपने असिस्टेंट्स को इस बात के लिए ट्रेन इसी वजह से शायद नहीं किया है, क्योंकि मेरे अंदर वो नेगेटिविटी इस चीज की रहती है कि रिसेप्शन पे शायद ना पूछे, बट फोन पे अगर पूछेंगे तो चार्जेस पूछेंगे. मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है. या ट्रीटमेंट तो नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको पता है असिस्टेंट है, तो बस चार्जेस पूछेंगे. तो उनको ये भी ट्रेन करना कि चार्जेस कौन से बताने हैं, कौन से नहीं बताने, कितना बताना है, अगर बताना है तो क्या रेंज बतानी है, और नहीं बताना है तो कैसे जवाब देना है कि वो जवाब भी पोलाइट लगे. ऐसा ना लगे कि नहीं नहीं बना किया गया, ऐसे नहीं. मतलब इस तरीके से भी ना होगी वो अपने ऊपर ले लें, ऐसे भी ना होगी वो डॉक्टर पे डाल दें. इस तरीके से बात करें कि पेशेंट को बुरा भी ना लगे और पेशेंट को समझ में आए कि वहां जाने से ही मेरा फायदा है, वहां जाके डॉक्टर से बात करने से ही एडवांटेज है, फोन पे गड़बड़ होगी. इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना ये बड़ा टफ होता है टू टीच दिस पीपल. व्हाई? क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं असिस्टेंट्स, और उनको कोई चीज सिखानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, एक्सेप्ट द वर्क दे डू. वो इजी रहता है, वो फटाफट फटाफट सीख लेते हैं. बट लैंग्वेज वाली चीज सिखानी, क्योंकि वो रेगुलर लाइफ में इतनी लैंग्वेज पे वर्क नहीं कर रहे होते, तो क्लिनिक में कर रहे हैं, उस चीज के लिए आपको अलग से बहुत मुझे लगता है कि ताकत लगानी पड़ती है. डॉक्टर सागर, इसमें 2 एस्पेक्ट है. एक हाउ यू हायर, ठीक है, बहुत लोग एक ही जन को अंदर बाहर असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट के लिए डालते हैं. इन योर स्टार्टिंग ऑफ प्रैक्टिस मुझे वो समझ में आता है. मतलब आप देते हो 6,000 7,000 5,000, मतलब जितना कम से कम सैलरी दे सके उसको वो लोग हायर करते हैं और अंदर बाहर चलाते हैं. मतलब रिसेप्शनिस्ट कम असिस्टेंट. ओके, मुझे बोलो पर ट्रीटमेंट व्हाट इज योर मार्जिन. अगर आपने एक अच्छा रिसेप्शनिस्ट हायर किया, ठीक है, ऑन एन एवरेज रिसेप्शनिस्ट और एक अच्छा रिसेप्शनिस्ट में देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ मे बी 7 to 8,000 रुपीज पर मंथ. उससे ज्यादा तो नहीं होगा. मतलब आपके एरिया में अगर 8,000 के लिए एक असिस्टेंट टाइप रिसेप्शनिस्ट मिलता है और आप बहुत एक डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स के कोई रिसेप्शनिस्ट आपके एरिया में ढूंढते हो, तो मैक्सिमम उनका 16 रहेगा. सो हाउ मच इज द मेजर डिफरेंस? 7 to 8,000. Now, if that receptionist is able to convert, okay, an implant patient for you or an FMR patient for you, और 2 या 3 रूट कनाल कन्वर्ट कर रही है हर महीने, if she is able to do it well, आपका तो पैसे निकल गया. प्रॉब्लम इज हम लोग को नहीं समझ में आता है कि रिसेप्शनिस्ट इज लाइक अ सेल्स पर्सन. हम लोग रिसेप्शनिस्ट सिर्फ टाइप मतलब लिखने का नाम और अंदर, हम लोग ने वो मेडिकल फील्ड का वार्ड बॉय ले लिया. वी आर not looking at a 5-star का receptionist. So if you want to increase your charges, you want to have a better feel of your practice, so you have to be willing to pay. एक मेरे सर हमेशा बोलते थे, if you pay peanuts you will get monkeys. मतलब तुम अगर peanut दोगे तो तुमको बंदर ही मिलेगा. तो दिस willingness, दिस stinginess कि मैं पैसे मेरे रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ को नहीं दूंगा, वो डेंटिस्ट के मन से हटना चाहिए.
So we have to hire better and we have to train. मतलब ये Right. दोनों चीजें किया ना, so that person sitting out will become a money making machine for you. It is not just the patient who came in the clinic. जैसे आपने बोला how they speak on the phone, तो वो बेसिकली 6-7 हजार 8 हजार जो आप एक्स्ट्रा पगार दे रहे हो प्लस आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उसको सिखाने में इज एन इन्वेस्टमेंट इन समवन हु इज गोइंग टू गेट यू पेशेंट्स. Right. तो Right. दिस इज समथिंग वी शुड नॉट बी स्टिंजी ऑन. मतलब अपने स्टाफ को नहीं सिखाना, उनसे ऐसे बुरी तरह बर्ताव करना, वैसा नहीं होना चाहिए. मतलब हमें इफ यू ट्रीट देम वेल वही बिहेवियर वो अपने पेशेंट्स के साथ करेंगे. तो आप अपने स्टाफ को कैसे रखते हो, आपका स्टाफ आपके पेशेंट्स को वैसे रखता है. सिंपल सा है. तो अगर आप अपने स्टाफ को अच्छे से नहीं रखते हो तो आपका स्टाफ आपके पेशेंट्स को अच्छा नहीं रखता. एक असिस्टेंट ने एक दिन छुट्टी मार ली ना, सब डेंटिस्ट की हवा टाइट होती है. वन डे assistant takes leave, the dentist is stressed. Oh, today I have to autoclave on my own. I have to watch the instruments. We have so much importance when they work and when they are missing. But when they are there, we do not value them. So this is something which dentists need to change. But if we want our patients to treat us well, we have to treat our staff well as well. राइट सर, डेफिनेटली. सर आपने भी ये पॉइंट बोला ना कि एक टाइम के लिए इट्स ओके कि भाई स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस में इट्स ओके. तो ऐसे ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ किस टाइम तक के लिए, फॉर एग्जांपल किसी किसी को लगता है कि अभी मैं जरा क्लिनिकल स्किल सीख लूँ, या अभी मैं इम्प्लांट सीख लूँ, या अभी मैं क्लिनिक को एक्सपेंड कर लूँ, आई लर्न अदर थिंग्स बाद में. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स? मेरा आंसर तो क्लियर है कि इट शुड बी टॉट इन कॉलेज इटसेल्फ, जो मुझे लगता है. तो मैं आपका जानना, हाँ, तो वो सर, बट हम ब्लेम भी नहीं कर सकते. कहा जाता है कि वो प्रोफेशनल कोर्स है और यू कैन नॉट टीच ऑल ऑफ दिस, जो मैंने सुना है टीचर्स से, जो मैंने बात डिस्कस. राइट. तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से कब कौन सा टाइम होना चाहिए जिसपे एटलीस्ट people should invest in it, not just the money, the time they should invest in it to learn this. I tell you what, ये किसी ने किसी को तो पूछा था, I think वॉरेन बफेट को पूछा था, what is the best time to invest? Okay, तो वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, the best time to put a tree is 20 years ago. The second best time to do it is today. ठीक है? So people who have the money to invest, okay, should find a mentor and do it right now. जिनके पास पैसे नहीं है, they should have mentors who they can virtually learn from. Okay, आज के जमाने में there is no dearth of virtual mentors. Now, for example, I've seen you put a lot of videos about communication. So they can follow you in dentistry. They can follow other people who are in non-dentistry related, talking about communication skills and everything. So they should at least spend 5 minutes per day on learning communication skills. ठीक है? Because this is something, वो लोग एक Pareto principle करके रहता है. 20% of your things are which give you the 80% impact. And 80% जो आप करते हो, उससे आपको 20% impact होता है. According to me, communication skills वो 20% में आता है, जो आपके लाइफ को सीधा 20 से 100 तक पहुंचाता है. ठीक है? मैंने इतने सारे लोग देखे जिनका काम is amazing, मतलब next to the next level, but they are not able to communicate to other fellow dentists, so they do not get referrals for their cases. They are not able to communicate with patients, so patients do not get converted easily. So just because they are weak on communication skills, they are not able to show their talent. So as you are learning other work, communication skills सीखना बहुत important है. Because see, अगर आपको रूट कनाल नहीं आया, अपर 7 है, आप अटक गए, you can call a consultant. पर अगर OPD आया, आपको कन्विंस तो आपको ही करना है. आप कंसल्टेंट बुला के कन्विंस तो नहीं करवा सकते रूट कनाल के लिए. सो बीइंग एबल टू कन्विंस समवन कि आप ये ट्रीटमेंट कराओ, या मेरे यहाँ पे ये क्लिनिक आपके लिए सही क्लिनिक है, वो आपको ही सीखना है. यू कैन आउटसोर्स आरपीज, यू कैन आउटसोर्स एक्सट्रैक्शंस, यू कैन आउटसोर्स इम्प्लांट्स, you can get an associate to do scaling, you can get composites done by others, but convincing you can't outsource. That you have to do it on your own. So अगर एक चीज के बिना आप चला ही नहीं सकते, तो वो अभी सीखना लेट है ऑलरेडी, पर एटलीस्ट अभी सीख जाओ. सो आई think right now is the best time for someone who wants to learn.
इफ यू हैव द मनी टाइम एंड यू वांट टू जंप, मतलब आपको सीधा ए से जी पे जाना है, मतलब आपको रुकना नहीं है, तो आप किसी और से सीखो जिसने सीखा है, या who have done those mistakes and have learned from others. If you can't राइट। afford, follow them, and when you have the money, learn from them. राइट। सर आपका बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बीच में आपने बोला ना, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि ऐसा होता है ना, आप जैसे आपसे तो सीधे लोग बात करते होंगे, वी हैव टू गेट द इम्प्लांट्स डन, आपने बोला कि मैं डालता हूँ, बात खत्म। बट फॉर ए पर्सन लाइक मी हु इज नॉट डूइंग इम्प्लांट्स, अभी वाइफ इज डूइंग इट नाउ, बट इससे पहले व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, तब तक इफ आई विल से समथिंग लाइक दिस कि भाई कोई और डालेगा, तो पेशेंट वो क्वेश्चन मार्क लगाता है ना। आपने जो बोला ना कि कैसे कन्विंस करना है कि कोई और आके करेगा क्लिनिक पे, तो वो आपसे बेहतर है क्या, ये प्रूव करना कि वो आपसे बेहतर है उस पार्ट में, और आप भी किसी चीज में बेहतर हैं, वो वर्बली ऐसे वर्ड से बात करना कि पेशेंट को ऐसा भी ना लगे कि इनको तो कुछ नहीं आता और ये तो सब कुछ बाहर से करते हैं। ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है कंसल्टेंट्स को बुला के काम कराने के लिए, काफी जनरल डेंटिस्ट के लिए। तो ये बड़ी मुश्किल से आई लर्न अबाउट ऑल ऑफ दिस, और अब तो कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज में। I'm sure you have learned it. You just have to tell they're a part of your team. You have to tell या जैसे यस ENT रहता है, आप अगर आप कल बीमार होते हो, आप जनरल फिजिशियन के साथ जाते हो, बट अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आप हार्ट स्पेशलिस्ट के जाते हो, ऐसा नहीं कि वो जनरल फिजिशियन को कुछ आता नहीं है। सो सिमिलरली राइट वी वर्क एज अ टीम, सो ours is a teamwork practice. Who is best at what does that process. So I am best राइट at certain particular thing, this is what I do, and if I feel राइट। I can give you better service by calling in someone else, I will give you to. So ये सिंपल चीजें without feeling hurt or offended, ये कम्युनिकेशन स्किल है बिल्कुल। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, जैसे सर ने बोला था कि लोग पूछते नहीं हैं, तो हम पूछ लेते हैं लोगों से अभी कि इफ somebody wants to ask anything from us, तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं एक बार देख लेता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन आया रखा हो, तो आई बिलीव अभी क्वेश्चन तो नहीं आया हमारे पास। One question is, how do you convince patient for treatment? दैट इज ए very big answer ideally though, but sir, if you want to answer this, please, I'll add my points, or if you want me to do it, then I'll start. How do you convince patients for treatment? Basically तीन पार्ट है मेरे हिसाब से। One is persuasion, ठीक है, एक पूरी बुक लिखी है इस पे, मतलब आदमी को परसुएड करने से, कन्विंस करने से पहले there is something known as persuasion, मतलब आदमी जो आपके पास आता है, he already has the mind frame that he will like you or not. Okay, so persuasion is how your branding and marketing is. So if I'm going to a particular place, now if I'm going to Ferrari for example, everyone in the world knows you're persuaded, मतलब आपके दिमाग में already है कि Ferrari is a top end car, so I have to Yes. be willing to pay more. Apple, okay, Apple mobile, if I'm going to buy, they've already put it in my mind that if I'm going to buy, I'm going to get more value for money, so I Right. have to be willing to pay more, otherwise I should not go towards that. So one is what you persuade the patient, मतलब patient आपके यहाँ पे आने से पहले, from where they are referred, how they got referred, did they see their board. So people जिनका already pre mindset बना रहता है positive, अगर आपने देखा है referred patients get convinced fast. The reason is they already have a good opinion about you. People who have read good about you in Google get convinced fast. People who just see the Yes. board and come, they take time to get convinced because वो persuasion part नहीं होता. So एक चीज है, to convince patient you should work a lot of persuasion, मतलब you should give your previous patients very good quality treatment, so they convince patients कि यहाँ पे ही जाओ, don't check about cost but get it done from that person. Second is how the ambience is. Now this is persuasion is before they enter the clinic. Second part of convincing the patient is not when you check the patient, it is how the patient feels in your clinic. There will be certain areas, आप कहीं गए हो, आपको एक अच्छा feel मिला, मतलब you enter into that space, you feel good about that space. So does your clinic feel like that? Okay, so this is second part of persuasion when they enter your practice. Okay, third part is once the patient under, मतलब you diagnose, you sit down the patient and explain the patient in depth. You will not tell कि हाँ आपको रूट करना चाहिए, इतना होगा, करना है तो करो. It should not be so short. Neither it should be Right. हम लोग रूट कनाल करने वाले हैं, आज हम लोग सुन करेंगे. It should not feel like an open heart surgery also. So it should be short कि every point is मतलब it should be short that कि आप बहुत बोर नहीं करो, गोल गोल मत जाओ, but it should be long enough that each and every point is explained to the patient.
So this is the Yes. second part of convincing the patient. The third part, जहां पे cost का factor आता है, you have to shift the patient's focus from cost to quality and your skill. That the patient should be willing कि थोड़ा ज्यादा भरा ना तो भी यही डॉक्टर से कराना है मुझे. So this is where you have to change the focus of from the cost to something which is more valuable. Your work, your skill, your clinic. Understood? And fourth is follow up with the patient. Even if the patient does not get treatment, like how you told, that follow up कि अच्छा मैंने वहां पे कराया नहीं, still they are concerned about me. Understood? So they might not get treatment done this time, but next time they might think about you. Okay? Yes. So these are 4 steps and each step में बहुत सारी चीजें हैं. मतलब प्रीसुएशन में बहुत सारी चीजें हैं, वेटिंग एरिया में बहुत सारी चीजें हैं, जो आपका कोर्स है. We will discuss in detail all these things, each and every step in the communication skill course which we are having. We are going to teach each and every step in detail, but this is the basic framework of how you need to convince them. Yes, sir. बिल्कुल definitely इसके बाहर कुछ नहीं है सर. मुझे नहीं लगता कि there is some anything which is left. There are few questions because we are already taking lot of time from sir. तो हम फटाफट से questions देख लेते हैं. मेरे लंबे लंबे अभी मुझे कुछ questions देख रहे थे. डॉक्टर रवि पांडे थोड़े से मजे ले रहे हैं कि हाउ टू बी ए स्टार डेंटिस्ट लाइक डॉक्टर सतीश एंड डॉक्टर सागर. तो उनका आंसर उस तरीके से कि बी लाइक डॉक्टर रवि पांडे then we will be star dentist. Get inspired by Ravi Pandey. Get right. Yes. Why are non-clinical jobs paid more than clinical jobs in dentistry? डॉक्टर साहब ये कोई कम्युनिकेशन से पार्ट नहीं है, बट नॉन क्लिनिकल जॉब्स पेड होती हैं क्लिनिकल जॉब्स के बजाय. ये तो एक बहुत ही डिफरेंट कांसेप्ट हो गया. नहीं डिफरेंट. इसमें कैसा है ना, नॉन क्लिनिकल में दे आर गिविंग यू बेसिक वर्क. Okay, now it depends on what non-clinical job. For example, medical transcription, virtual scribing. इसमें skill नहीं है. उनको डॉक्टर इसीलिए चाहिए because you understand the doctor's terminologies. So rest of the work is typing and scribing. Okay, and they are charging your the American clients and the foreign clients a huge amount of money. So they are paying you a small portion of what they are earning. Okay, as a fresher dentist, when you join a clinic, how much do you actually know? Are you able to give a large amount of value? मतलब आप 2 लाख 3 लाख का ट्रीटमेंट कर पा रहे हो क्या डॉक्टर के लिए? If you are able to do a 2 lakh treatment, that's when you earn 50-60,000. This is same in non-clinical field. If they are giving an IT person a 1 lakh rupee salary, 100% that person is making 4 lakhs for that company. Okay. Otherwise, no one in any sense pays more than 30% or 40% because बाकी 30-40% running cost रहता है और बाकी 30% profit रहता है. Everywhere 15-20% profit रहेगा. So you have to be able to provide that much value. So the problem is non-clinical jobs may they are able to earn more value for the work you do, but clinical jobs, because the charges in India is very low, so the doctor is not able to make a huge profit on it, on what you are doing, because your skills are not at that level as of now. So they are not able to give you a large amount of money. Second reason है कि जितने डेंटिस्ट है उतना कंपटीशन है. It is demand and supply. Sadly, that is not in our hands. So you will have to be able to work on your skills, including communication skills, so that you are able to generate revenue for your dentist. अगर आप conversion कर पाए, अगर आप दिन के 3 पेशेंट अच्छे पेशेंट आपके डेंटिस्ट के लिए कन्वर्ट कर पाए, why will he not pay you 100%? Because डेंटिस्ट ऑल्सो नोज कि मेरे लिए इतना ट्रीटमेंट करके ला रही है, इतना कन्वर्ट कर रही है, मैंने उसको एक आरसी दिया, उसने तो उसके बाजू के 5 क्लिनिक कन्विंस करा लिए पेशेंट को. So 100% I am going to pay you more. If I find value in you, it is not happening, I'm not going to pay you. So if you create value, you will get paid eventually. Right. Brilliantly said, sir. सब कुछ क्लियर कर दिया आपने. मेरे जितने भी फ्रेंड्स नॉन क्लिनिकल जॉब्स कर रहे हैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इसी दुविधा में रहते हैं. Are throwing offers ethical for new dental clinic? If yes, what kind of offers you can put in? We know some of the chain clinics do very bad marketing, don't want to be like them. Sir, मेरे हिसाब से तो throwing offers is a very non-ethical term, throwing offers, but yes, ये जरूर होता है कि पेशेंट I never feel कि कोई ऑफर थ्रो किया जाए, बट यस अगर पेशेंट कोई चीज बहुत ज्यादा कन्विंसिंगली मांगता है कि और बहुत पोलाइट मैनर में मांगता है, फॉर एग्जांपल अगर वो डिस्काउंट की बात करता है या बार्गेनिंग की बात करता है,
और बहुत ज्यादा उस चीज के लिए इंसिस्ट करता है, तो देर आर डिफरेंट वेज टू 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 डू इट इन ए मैनर कि आपका भी नुकसान ना हो और पेशेंट को भी ऐसा लगे कि लॉट ऑफ थिंग्स इज डन फॉर मी. तो ये तो दिस इज हाउ आई No, प्रोसीड. बट he's not एथिकल asking ऑफर. about discount. He's asking about हमें बाहर वालों को बताना है क्या. आपने जो बोला कोई आ रहा है और डिस्काउंट मांग रहा है उसके लिए है. What is your हाँ opinion about offer? मतलब मैंने खोला, बाहर वालों के लिए कुछ ऑफर देना चाहिए. सर, मेरे हिसाब से तो जो मैंने ऑफर दिया था वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी. मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा फर्स्ट ऑफर जो था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद माय फैमिली, जो इस जो कोर्स हम करने वाले हैं उसमें भी जो कराने वाले हैं उसका भी पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है. इसी वजह से मैंने वो पार्ट रखा हुआ है. आपके साथ भी डिस्कस इसी वजह से किया था कि फैमिली के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती कई बार, कि फैमिली क्या सोचती है अबाउट डेंटिस्ट्री, और उनको डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता. उनको लगता है ये या तो किसी को बिजनेस फैमिली है तो उसको लगेगा बिजनेस है, कोई और दूसरी फैमिली है तो उसको वो लगेगा, तो वो उसके हिसाब से अपनी चीजें बताते हैं. तो मेरी फैमिली ने बोला कि भाई चार्जेस लो रखो, कंसल्टेशन मत लो, तो नेबर्स हैं तो पेशेंट ज्यादा आएंगे, तो उनको शायद ऐसा लगा. और मेरी सबसे बड़ी गलती क्यों थी, कंसल्टेशन ना रखना मेरी वैल्यू घटाता है, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि ये कंसल्टेशन इसलिए नहीं ले रहा है बिकॉज इसको आता ही नहीं कुछ, ही इज नॉट ए वेरी गुड डेंटिस्ट. एक ने तो बोल दिया मुझे, आप क्यों नहीं ले रहे, आप लीजिए. ऐसा भी हुआ. और अगर मैं लो लो कर लेता हूँ चार्जेस, ऐसा करता हूँ, तो वो भी मेरे लिए अपोजिट इफेक्ट डाल रहा था. और आज भी वो पेशेंट जिनके मैंने लो करके किया था वो आज भी मुझे आके ही बोलते हैं, आप तो कंसल्टेशन नहीं लेते थे, आप तो हमारे लिए कंसल्ट कर देते, हम तो नेबर हैं. और आज भी उनसे बात करने का तरीका मुझे फिर अलग से करना पड़ता है, तो आई कन्विंस देम. बट बहुत सालों तक इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. तो स्टार्ट में स्पेशली आपने जो करना है वो आपको एंड तक तंग करेगा. ये दिस इज माय ओपिनियन. आपका सर I वैल्यूएबल want to ओपिनियन है to listen to the answers. अभी बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं, please answer this in the comments कि आपको क्या लगता है. Should you have an offer or should you not have an offer? Okay, because this is like the heart and soul discussion across places. Ravi ji, if you are still there, please put this answer down also. What is your opinion about offers and uh, डॉक्टर रवि तो throwing offers out क्लियरली there? मना कर देंगे. जितना मैं उनको जानता हूँ तो एकदम से प्रोटेस्ट में आ जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना. दिस इज हाउ ही रिएक्ट्स टू I would like to ऑफर्स एंड listen ऑल. to that. See, my opinion is no. It depends on what type of practice you want to make. Problem क्या है ना, जब हम लोग डेंटिस्ट बात करते हैं ना, हम लोग हमारे पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को जांचते हैं. Now there are different types of practices. Okay, one practice is basically roadside practice. Okay, मतलब आप सिर्फ कॉस्ट पे मार्केट कर रहे हैं. So if you are permanently going to market your clinic based on low cost, you can do it from day one. मतलब आप सीधा ऑफर रखो और बोलो कि मैं सबसे सस्ता हूं, मैं लाइफ लॉन्ग सबसे सस्ता रहने वाला हूं. ठीक है, ये हुआ आपका ब्रांडिंग. मतलब आपने आपको सस्ता किया. और व्हाई नॉट. बिग कंपनीज आई क्या करती है ना, बिग कंपनीज मैकडोनल्ड करती है ना. ठीक है, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, दे आर प्रॉफिटेबल. Okay, so if you are planning to run a practice like that, yes, I am not against running offers. Okay, second is uh, if you're not planning to run a practice like that, you want to run a practice जो आपके नाम पे हो, आप धीरे धीरे चार्जेस बढ़ा सके, एक स्पा वाला काइंड ऑफ प्रैक्टिस बनाना चाहते हो. ठीक है, then if you are planning to put an offer, can you say you're the cheapest? No. Can you say you're doing something silly? No. Then how you can do offers? Maybe you can do a collaboration with someone. See here, marketing is about getting the word across कि मैं एक चीज कर रहा हूं और आप मेरे बारे में जानो. ठीक है, you can maybe tie up. Now, give me an example. People tie up with all these Mr. Indias, Miss Indias. They do some amount of free treatment for those actors, actresses, and everything, so that they create a brand. They get more kind of those actors, actresses also, and people who want to imitate them also they get by reducing cost. Isn't that an offer? That is an offer. Okay, at the end of the day, but that is a calculated offer based on what kind of patients they want to attract. ठीक है, so ये I am not against the opinion of offer मत करो. आप ऐसा ऑफर मत करो जो आपको आके बाद में काटे. Yes. सिंपल सा है वो. So based on what branding you're planning, what your long term vision is. ठीक है, जब हम लोग कम्युनिकेशन कोर्स करेंगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसा चाहिए, उसके हिसाब से your communication skill has to be. I cannot speak to the same patient, okay,
how I speak in South Bombay, how I speak in Kurla, और how I speak in Bandra. मतलब 3 अलग प्रैक्टिस स्टाइल्स में, ठीक है. आई डोंट नो वहां पे कैसा है, मे बी सरोजनी नगर, मे बी नोएडा, मे बी अलग अलग सेम प्लेसेस सर, में. साउथ दिल्ली एंड वो इज सेम, मतलब साउथ दिल्ली इज Yes, डिफरेंट क्राउड एंड अदर पार्ट इज डिफरेंट क्राउड एंड ओल्ड दिल्ली exactly, इज डिफरेंट क्राउड. perfect. तो वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बॉम्बे में हर जगह है. सो द सब कम्युनिकेशन जगह. स्किल विल वेरी. Similarly, offer also has to vary. And what type of offer you can give, what type of salesy pitch you can give. मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करना है, पर क्या करना है वो आपके क्लिनिक के स्ट्रेटेजी के हिसाब से होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई बिलीव. कंप्लीटली एग्रीड सर. सजेस्ट बुक फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे हिसाब से तो सर की बुक इज सजेस्टेड, और कुछ बुक्स मुझे याद नहीं है ऐसे, मेरे बट मैं बुक में आई आपको. डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. Okay, so if they are looking for communication skills, I think Persuasion is a good book. Okay, Influence is a good book. Talk to Anyone करके बुक है ना. वंडरफुल बुक, जो ही नाम याद नहीं आ रहा था. टॉक टू एनीवन इज अ वंडरफुल बुक. वो Talk to Anyone is a ऑथर का wonderful book. नाम तो काफी डिफिकल्ट है इसलिए याद नहीं आ रहा था मुझे. इट्स अ वंडरफुल बुक. Yes, Talk to Anyone is a wonderful book. ऐसे बहुत सारे बुक्स है. Okay, about how to speak and everything. But the problem is learning it is easy. ठीक है, मतलब आप एक बुक पढ़ लो, पर वो एप्लीकेशन में इश्यू है. So I would advise, if you're joining a program, well and good. If you're not joining a program, at least have a group of friends or people. मतलब एक community होना चाहिए where you practice this, where you speak this way. मतलब आपने कुछ सीख लिया और वो अप्लाई नहीं किया ना, within say 24 or 48 hours you end up forgetting about it. So see that when you're learning, apply or discuss with people. So have a core group of people where you can keep discussing these kind of things, learning knowledge, and so that you apply it faster. ये important part है, सिर्फ सीखना important. Knowledge which is राइट. learned and not applied is waste. It has no knowledge as such. नो, बिल्कुल सही सर. देयर आर पीपल हु ऑलरेडी जॉइन द प्रोग्राम. कुछ कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम कंसल्टेंट्स हैं, एमडीएस कंसल्टेंट्स हैं, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम डिफरेंट स्टेट से हैं या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इस वजह से भी कि हम थोड़े से ओपन नहीं है, थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, तो बात नहीं कर पा रहे अबाउट कि टू द ओनर ऑफ द क्लिनिक के जो ओनर्स हैं उनसे डिस्कस नहीं कर पाते, या पेशेंट, या कई बार पेशेंट कन्विंस हो जाता है तो ओनर बोलता है कि चार्जेस थोड़े से आप वो डिसंगेज कर लो ताकि पेशेंट कन्विंस हो जाए. तो ऐसे भी कुछ हैं, कुछ ऐसे भी इंटर्न्स भी हमारे साथ हैं जो वांट टू लर्न थिंग्स फास्ट, और उनको लगता है कि वो इतने शाई हैं अपनी लाइफ में कि पता नहीं क्लिनिक में पेशेंट से कैसे बात करेंगे. तो आपकी बात सही है कि इट्स ए वेरी बिग क्राउड, तो सबको जल्दी ही सीखना चाहिए, बट जो जिस टाइम पे सीख जाए उतना इज गुड. तो सर बहुत टाइम And I हमने ले have लिया faced आपका. both of these problems. आपने जो दोनों problems बोले before we end, हाँ. I have faced both. I'm an introvert by the way. ठीक है, तो मैं ओके. ऐसा ये सब दिखता है, but I am very shy in front of the camera. I can talk two to two, मतलब दो जन है गप्पे मार रहे ठीक है, but I am not very an extrovert kind of a person. मतलब मैंने अगर 20 जन के साथ टाइम स्पेंड किया तो फिर मुझे थोड़ा टाइम ऐसा अकेले में बैठना पड़ता है. ठीक है, because I'm an introvert internally. And second thing is I'm a periodontist, I'm a consultant, and I put my clinic in an area called Airoli in Navi Mumbai. ठीक है, and the हाँ time जी. it was completely Maharashtrian crowd. और मैंने मेरी पढ़ाई महाराष्ट्र में नहीं किया है. I've done it outside. Okay, so मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी. And my core patients were वहाँ के लोकल गांव वाले, मराठी मानुस बोलते हैं उनको. ठीक है, हाँ जी. so it is tough when you do not know the language. But I have realized, ठीक है, majority of the people, वो लोग एक डॉक्टर में सिंसियरिटी देखना चाहते हैं, एक अटेम्प्ट ऑफ कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं, मतलब दैट एम्पैथी कि वो मैं एक डॉक्टर हूं और वो एक पेशेंट है, वो फील करना चाहते हैं. सो इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट दैट पार्ट वेल, पेशेंट्स गेट कन्विंस्ड एंड इट हैज वर्कड फॉर देम. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट फर्दर इन आवर कोर्स. एंड सेकंड थिंग, आई आल्सो हैड दिस प्रॉब्लम. क्लिनिक्स गए चार्जेस बढ़ाने, मतलब डॉक्टर क्राउन लेंथनिंग का चार्ज कम करने बोलेगा, क्राउन का चार्ज कम नहीं करेगा, बिकॉज पूरा पेमेंट उसका है, बट मेरा जो शेयर है उसमें ही विल आस्क मी टू रिड्यूस. सो ऑल कंसल्टेंट गो थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड वी विल डिस्कस फॉर दैट specialists who have joined these points also about how to communicate charges to the as a consultant, to patients, to doctors, okay,
how Of an course. introvert will be able to confidently speak with others, okay? Because you will have to create an aura, you will have to get out of your this if you want to succeed in today's day and age. वो सीखना पड़ेगा. Mhm. So we will discuss all those things in detail for sure. Right. Right. Thank you so much, sir, for your time. I'll end this now with little details about the course that we are starting from 10th of June, Saturday, Sunday, and night after 9 p.m. so that everyone can come. जिनके clinics है उनको भी disturbance ना हो और सर का पार्ट मेरा पार्ट दोनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे. कितना टाइम लगेगा? मोस्टली हमें लग रहा है कि शायद 1-1 घंटे के सेशंस रहें. तो आज भी हमने सोचा था कि 15 मिनट रहे बट इट्स मोर देन हाफ एन आवर, तो चीजें एक्सटेंड हो जाती हैं बिकॉज देर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. सर अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे, मैं अपने के साथ साथ जो मैंने अपने सीनियर्स जूनियर्स जिन जिनको जो जो गलती या सही चीजें करते हुए देखा वो डिस्कस करेंगे. तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो हमने ये लाइव इसलिए किया था ताकि ये डिस्कस हो सके कि कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से देखा जाना चाहिए. सो अगर कोई और डिटेल आपको चाहिए तो प्लीज डीएम मी एंड feel free to ask anything you want to ask about this. Thank you, sir. Thank you so much for the It's an time. amazing initiative. Power to you, bro. Amazing initiative. Very नहीं good. सर, सारी पावर आपसे आ रही है और सर सारी पावर आपसे रिफ्लेक्ट हो रही है. सो यू आर लाइक ए सन टू मी अभी. तो थैंक यू सो मच फॉर द इंस्पिरेशन एंड गेटिंग मी बैक ऑन ट्रैक. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. गुड नाइट एंड गुड नाइट एवरीबॉडी. और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज डीएम करिएगा. थैंक यू. Thank you.